Dear students, welcome to this next lecture of BA BSc Part 2 Mathematics Paper 2, of which I am teaching dynamics. So far we have seen motion in a straight line, in which we did not study any components at all. If the direction was along x-axis, then the velocity vector was simply dx over dt in the direction of x increasing, and acceleration vector was, you can apply vector here, and acceleration vector was d2x divided by dt2, or you can also write dv dt, or another thing I told you, v dv over dx. Followed by then we studied motion in a plane in which the curve is moving along a curve, the particle is moving along a curve, and in that case the velocity, I told you that, and I proved that the velocity will always be along tangent. And in this case we obtained the components of the velocity along x-axis, y-axis, the velocity along tangent, or the whole velocity, was ds over dt. And if the axes were x and y axes, we had taken two mutually perpendicular axes there with a reference point O, then the components of the velocity along these two axes were simply dx over dt, dy dt, if the particle was at position x comma y at time t. Next, we studied components of velocity along radius vector and perpendicular to radius vector, and those components were called radial velocity and transverse velocity. In case of radial velocity, what we do is we simply take a particle on a moving particle on a curve with its polar coordinates r comma theta at any time t, and then we prove that the velocity along the radius vector, or OP, is r dot, and this component is r theta dot, and this will be always in the sense of r increasing because it consists of the derivative dr by dt, and this will always be in the sense of theta increasing. Theta increasing means this sense, right? So we studied radial transverse components of velocities, or radial and transverse velocities, followed by radial and transverse accelerations. Some part I had given you as your home assignment also. Then we had a look at tangential and normal velocities. Velocities already we had seen, acceleration I should say. Then we had a look at tangential and normal accelerations, and very important thing that we saw that even normal velocity is always going to be zero, because there is there cannot be, there will not be any component of this tangential velocity along any direction which is perpendicular to it. So normal velocity is always going to be zero, but normal acceleration is not going to be zero, because there is always a possibility of the change in the direction of motion. So uh, then we studied s double dot, which is tangential acceleration, and v square divided by rho. Rho is radius of curvature of the curve along which the particle is moving at that point P. So in this way, and one more thing I had given you as an assignment with some introduction given to you in your class, was relation between angular velocity and linear velocity, and that relation is very important relation. Actually, what we had seen there is theta dot theta dot equals Vp divided by r square, where p is the same as we have seen in the pedal coordinates, the length of perpendicular from origin to the tangent to the point at the curve. So this was P, R is simply radius vector, V linear velocity, theta dot is angular velocity. Actually, what happens here, as the particle changes its position on the curve with time, theta also changes. Either theta increases or decreases. If the particle is moving in this direction, theta will decrease. The particle is moving along that direction, theta will increase. So there is, as the particle moves,
there is a certain possibility that theta will change. If theta will change with time, then we will be having theta dot, and it is called angular velocity of the particle with respect to O, because here we are determining this angle theta with respect to point O. So always keep in mind, angular velocity will always be angular velocity of the particle with respect to fixed point O in the plane. Right now, there is a very confusing term, angular velocity, and another term is there, angular velocity of direction of motion. So यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं दोनों में क्या डिफरेंस है. जब हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, तो अगर सपोज करें कि एक पार्टिकल है जो कि लगातार अपनी पोजीशन एक कर्व पे मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो विद टाइम व्हाट विल हैपन, एक फिक्स पॉइंट O जो कि उसी के रेफरेंस प्लेन में या जिस प्लेन में वो मोशन कर रहा है, मोशन इन 2D वी आर कंसीडरिंग हियर, तो उसी में हम लोग ने एक फिक्स पॉइंट लिया, उसको हम लोग O कहते हैं, और X या इनिशियल लाइन कह सकते हैं, इनिशियल लाइन, और Y एक्सिस यू कैन से. तो यहाँ पर थीटा लगातार चेंज होगा. उस केस में if small change is delta theta, then del theta by del t is the rate of change of angle with respect to O, and if we take the limit, we get the velocity d theta by dt. This is angular velocity of P about O with respect to O, I should say. But when we talk about angular velocity of direction of motion, then what does it mean? It means that now you are talking about the rate of change of some angle, and that angle is the direction of motion. What is the direction of motion? I have already told you that the direction of motion is tangent. Okay, since the velocity is always going to be in the direction of tangent or tangential, there is no normal velocity at all in sense of magnitude. So here, if a particle is moving along a curve, and suppose at some time t, the particle is at P, initially it was A, and after subsequent time del t, the particle is at Q. If this is the tangent or direction of velocity at P, and this is the tangent or direction of velocity at Q. So here at Q. So here, the angle between tangent and the positive x-axis, or you can say initial line, is denoted by psi. You already know this, psi, where you have seen that tan psi is dy by dx, slope of tangent. और अगर q पर वो पहुंच गया है तो psi में चेंज हुआ होगा, और बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल del t में हुआ है, तो psi प्लस del psi. तो व्हाट इज द चेंज? सो द एंगल बिटवीन दीज टू अगर आप निकालना चाहें, तो ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स वाला आप रिजल्ट यूज करेंगे. सो यू विल गेट दैट दिस एंगल इज डेल साई. तो कितने टाइम में ये एंगल दोनों टेंजेंट्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना टर्न कर गया? सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन हैज टर्न्ड बाय दिस एंगल डेल साई इन टाइम डेल टी. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मोशन, दिस डायरेक्शन इज डेल साई divided by del t, and then if you take limit del t tends to 0 to get the velocity, you will get d psi by dt. So keep in mind, the angular velocity of direction of motion is d psi by dt in the sense of psi increasing. और angular acceleration की अगर बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? So the angular acceleration will be of direction of motion of DOM, direction of motion, is it will be d2 psi divided by dt2. So ये terms बहुत ही important हैं, angular velocity and angular acceleration of direction of motion, और simply angular velocity और acceleration. ठीक है. अब आप लोग इसमें मैं आप लोगों को पिछले टर्म पे भी मैंने बोला था, ऑलमोस्ट ये पूरे चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है. आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत सारे ट्राई करने हैं. ये दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, एंड इफ यू आर हैविंग दैट एप्सिलॉन पब्लिकेशंस बुक by Dr. Vinod Kumar, then this is the first chapter, kinematics
और इस चैप्टर में आपके पास में पहले मोशन इन द स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फॉलोड बाय मोशन इन द प्लेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करें और डिफिकल्टीज आप मुझसे शेयर करते रहेंगे जब तक मैं खुद कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स लेकर के अभी कंटिन्यू करता हूँ इसी लेक्चर को। तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स देखने के पहले कुछ बातें जैसे आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करना होगा, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पे करने के लिए मिल सकती हैं, आपकी बुक में मिल सकती हैं। एक तो पहला केस ये हो सकता है कि आपको रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज दी हो और आपको रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस या जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है, मतलब वो किस पाथ ऑफ द पार्टिकल, अगर आपको रेडियल और ट्रांसवर्स दिया हुआ है मतलब आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको यू हैव बीन प्रोवाइडेड थिंग्स इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम and it becomes easier to find the polar equation of the moving particle in this case। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ये रहता है, तो इस साल भी अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो आप लोगों को उसमें ये नहीं होगा कि आप लोगों को उन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन लेना है। आपके पास ये फ्रीडम रहेगी, आपकी वर्किंग भी चेक की जाती है जिस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास ये फ्रीडम रहेगी कि आप अगर कार्टेशियन में आंसर दे रहे हैं तो भी ठीक है, पोलर में दे रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आपके लिए इजी क्या, कन्वीनियंट क्या पड़ेगा। तो अगर आपको रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एक्सेलरेशंस दिए हुए हैं, आपको पाथ ऑफ द पार्टिकल चाहिए, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं क्योंकि r और थीटा में रिलेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको बेसिकली मिल जाएंगी। देखिए जब आप r डॉट की बात करोगे दैट इज dr by dt, जब आप ट्रांसवर्स वेलोसिटी r थीटा डॉट की बात करोगे दैट इज r d थीटा by dt। अगर आप दोनों का रेशियो ले लेते हो, डिवाइड कर देते हो, तो एक तरीके से आपको dr और d थीटा वाले टर्म्स मिलेंगे और एक dr by d थीटा इज इक्वल टू समथिंग एज अ फंक्शन ऑफ r और थीटा। ये तो सिंपल सी फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ में आपको ये पता होगा कि इनिशियली वो जो मूविंग पार्टिकल है वो शुरुआत में कहाँ पे था, तो इनिशियल कंडीशन मिल जाएंगी कि जब थीटा 0 है तो r कितना है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को और साथ ही साथ में ये इनिशियल कंडीशंस को मिला करके एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो हम लोग ओडीई में पढ़ते हैं, आपके सेकंड ईयर कोर्स में आपको मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ईयर में भी आपने थोड़ा बहुत देख रखा है। तो जो हम लोग ओडीई हम लोग पढ़ते हैं विद इनिशियल कंडीशंस, दैट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो r और थीटा में हम लोगों को एक यूनिक रिलेशन मिल जाएगा एंड दैट रिलेशन इज पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस केस में जब कभी भी आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो आपको एक पोल, या तो पोल इस क्वेश्चन में गिवन होगा कि विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट तो दैट पॉइंट इज पोल। अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दी होगी दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी पोल। लेकिन अगर आप लोगों को खुद से सोचना है कि हाँ कुछ ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया हुआ है, उस केस में हम लोग क्या करें, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हुए, समझते हुए, उसके बाद में ही आप लोगों को पोल डिसाइड करना होगा कि हम पोल या रेफरेंस पॉइंट और इनिशियल लाइन किसको लेंगे। इसी तरह से आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आ सकती हैं जो कि आपकी टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशंस प्रोवाइडेड हो सकते हैं या टेंजेंशियल वेलोसिटी दी हो सकती है, आगे कुछ करना हो तो कई बार क्या होगा कि एस और साई में रिलेशन निकालना आसान रहेगा, दैट इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग ये वाली प्रॉब्लम में कुछ देखिए, मैंने आपसे पहले बोला आप सारी प्रॉब्लम्स आप अपनी बुक में से एक बार जरूर ट्राई करेंगे, स्पेशली जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है वो तो आप कोई भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट which possesses two constant velocities u and v, u along a fixed direction, right? तो यहाँ पर आप एक फिक्स डायरेक्शन को क्या समझेंगे, तो अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इस केस में तो फिक्स डायरेक्शन आपका इनिशियल लाइन का डायरेक्शन हो गया, जो आपने एक्स एक्सिस आपने एक तरीके से ले लिया या इनिशियल लाइन आप कहते हैं उसको ले लिया। तो हमेशा उस मूविंग पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज हैं u and v, u is along a fixed direction, suppose x-axis, and v is perpendicular to the radius vector drawn from a fixed point। अब देखिए यहाँ पर बात कर ली इन्होंने फिक्स पॉइंट की, हमने फिक्स पॉइंट को फिर हमने यहाँ सपोज किया O है, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम सपोज मूविंग पॉइंट P है जो कि t टाइम पर इस पोजीशन पे है, और दिस इज OP इज रेडियस वेक्टर, और OP के परपेंडिकुलर
ओपी के परपेंडिकुलर जो हो गया ये आपका वेलोसिटी v गिवन है, दिस इज v, इट इज गिवन, और क्या रेडियस वेक्टर के अलावा वेलोसिटी गिवन है? नहीं। देखिए समझिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है या ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है, ये कभी भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जब आप पॉइंट को यहां से यहां ले जाएंगे तो रेडियस वेक्टर ओपी चेंज हो जाएगा, राइट? तो यहां पर फिक्स डायरेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो आपको इनिशियल लाइन या एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है, और वो फिक्स डायरेक्शन के अलोंग मतलब एक पैरेलल टू दैट डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने जो वेलोसिटी ली वो u है और दूसरा कंपोनेंट v है। क्लियर हो गया? अब यहां पर करना क्या होगा आपको? तो करेंगे क्या, देखिए करेंगे ये कि बहुत अच्छे से समझिएगा, करेंगे ये कि यहां पर रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो होते हैं, अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स r और थीटा अज्यूम करें विद रिस्पेक्ट टू पोल o, तो रेडियल वेलोसिटी r डॉट यानी dr/dt और ट्रांसवर्स वेलोसिटी r थीटा डॉट दैट इज r d थीटा dt। एंड करना ये है आप लोगों को कि आपको dr/dt और r d थीटा by dt के लिए इक्वेशंस लिखनी है। वो इक्वेशंस लिखने के लिए आपको पता लगाना होगा कि जो दो वेलोसिटीज गिवन है u और v, इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स क्या हैं एक्चुअली इन दोनों दिशाओं में, रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो देखिए यहां पर v जो है, v ऑलरेडी v जो है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यानी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो v को हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है किसी भी डायरेक्शंस में। बेसिकली हम लोगों को u जो है दैट इज नॉट अलोंग रेडियस वेक्टर और परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, u को हम लोग डिकम्पोज करेंगे दो डायरेक्शंस में। अब वो करने के लिए देखिए ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी, सिंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। और अगर हम लोग इसको आगे प्रोड्यूस करें तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, यस दिस एंगल इज थीटा, और अगर u के कंपोनेंट्स ले लें तो थीटा के साथ में जो डायरेक्शन है उसके अलोंग u cos थीटा, और इन अलोंग दिस डायरेक्शन, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके इजीली, और इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा u sin थीटा, राइट? तो यहाँ पर अब हमें dr/dt लिखनी है। अगर एक प्रॉब्लम ये वाली आप अच्छे से समझ लेंगे आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। आपको यहाँ dr/dt लिखना है, तो अब सवाल ये उठता है कि dr/dt हम ये डायरेक्शन लें कि वो डायरेक्शन लें। तो मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया dr/dt इज इन द सेंस ऑफ r इंक्रीजिंग। तो r इंक्रीजिंग किधर हो रहा है, r इंक्रीजिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट? सो dr/dt हम लोग इस तरफ लेंगे, तो इस तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें मिल रहा है वो क्या है, वो केवल एक ही कंपोनेंट मिल रहा है u और v मिला करके, वो है u cos थीटा। सो dr/dt इज गोइंग टू बी u cos थीटा, राइट? फिर r d थीटा by dt की जब हम लोग बात करेंगे तो ये होगा थीटा के इंक्रीजिंग के सेंस में, और थीटा किधर इंक्रीज कर रहा है, थीटा इस तरफ इंक्रीज कर रहा है यानी ये डायरेक्शन। तो यहां पर ये डायरेक्शन आपका, ये डायरेक्शन हुआ ट्रांसवर्स डायरेक्शन जिसके अलोंग हम लोग r d थीटा by dt ले रहे हैं। तो इसी डायरेक्शन के अलोंग हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी लेंगे जो v और u के कंपोनेंट से निकल रही है, तो वो क्या है, v माइनस u sin थीटा। क्लियर हो गया? u sin थीटा माइनस v नहीं लिखिएगा, क्योंकि u sin थीटा माइनस v तो हमारे थीटा डिक्रीजिंग का डायरेक्शन है, ठीक? तो यहां पर हम लेंगे v माइनस u sin थीटा, ये हो गया। अब आपको बेसिकली इनको डिवाइड करेंगे और यहां से r d थीटा बाई dr, और वो आपको यहां से कुछ मिलेगा एक्सप्रेशन, ये एक बहुत ही सिंपल सी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन मिलेगी। अगर हम इसको dr बाई r, इसको हम लिख सकते हैं dr बाई r इक्वल्स u cos थीटा डिवाइडेड बाई v माइनस u sin थीटा d थीटा। If we solve this ordinary differential equation, which is variable separable, very easy to handle this, we get log r equals minus log v minus u sin theta plus log of some a, right? तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा a upon r equals v minus u sin थीटा। और जो आप लोगों को कॉनिक सेक्शन की बात की जा रही है, और कॉनिक सेक्शन अगर आप इस तरह से O को पोल लेकर के लिखते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है L अपॉन R
इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, या अगर इनिशियल लाइन को रोटेट कर दें 90 डिग्री तो आपका यहाँ माइनस भी आ सकता है, और या फिर अगर अल्फा एंगल तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा माइनस अल्फा भी आ सकता है। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ये थर्ड पेपर में कॉनिक सेक्शंस जो पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स है, तो वहां पर उसी को यहाँ पे ध्यान पे रखते हुए अगर हम लोग एक काम करें, यहाँ 1 बनाने के लिए b से डिवाइड कर दें तो आपको यहाँ मिल रहा है a डिवाइडेड बाय v अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस u अपॉन v इंटू साइन थीटा, राइट। अच्छा, यहाँ साइन थीटा कैसे आ सकता है? अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो थीटा की जगह पे थीटा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। थीटा माइनस पाई बाई 2 के केस में फिर यहाँ पर साइन थीटा भी आ सकता है, राइट। ये तो अगर आप इसे कंपेयर करें एल अपॉन आर, सो दिस इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा या साइन थीटा, तो ई कितना हुआ? इसेंट्रिसिटी इसकी कितनी हुई? u अपॉन v। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था कि जो मूविंग पार्टिकल है वो एक कॉनिक सेक्शन ड्रॉ करेगा, उसका जो पाथ होगा वो एक कॉनिक सेक्शन होगा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, लेकिन हाँ आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस आप लोग ज्यादा से ज्यादा या हो सके तो सारे क्वेश्चंस ही मेरे नेक्स्ट लेक्चर जहां तक मैं कर लूंगा, तो तब तक आप लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है। इस समय आप लोगों का टाइम जो है कॉलेज में ऑनलाइन बोर्ड ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो आप लोगों के पास टाइम काफी सारा है, उसको आप यूटिलाइज करें। क्वेश्चन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों प्रॉब्लम्स मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली नहीं ली हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स ली हैं, ताकि अच्छी प्रॉब्लम समझने के बाद आपकी जो इजियर प्रॉब्लम्स है आप अच्छे से टैकल कर सकें। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या कह रही है कि एक नाव है, देयर इज अ बोट, एक नाव है जो कि वो नाव एक रिवर है और उसमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी u के साथ में उस नाव को चलाया जा रहा है, और वो नदी के किनारे, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इसे, लेट अस चेंज द कलर। अब सपोज करिए कि ये है A और यहाँ पे वो नाव थी, राइट, यहाँ पे वो नाव है, चलिए मैं नाव ले ही लेता हूँ, ठीक। अब वो जो नाव थी वो A पॉइंट पर है, फिक्स पॉइंट A पर, और वो हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ में, दैट बोट इज रोड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, नाव को खेते हैं, नाव को खे रहे हैं किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी v and it points always towards a point B on the other bank exactly opposite to A। मतलब A is on one side of the river, B is directly opposite to A on the other side, okay, दूसरे किनारे पर है, और हमेशा जो नाव है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा u है, नाव की वेलोसिटी हमेशा u है, और दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स b, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां पर बोट किसी भी पोजीशन पे होगी, हमेशा जो उस बोट की जो वेलोसिटी, जो उसको वेलोसिटी दी जा रही है, जो फोर्स की जा रही है वेलोसिटी उसके ऊपर, वो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड v रहेगा, और जो डायरेक्शन है v का डायरेक्शन वो हमेशा इस पॉइंट b की तरफ है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, अच्छा, और साथ ही साथ में ये बताइए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचिए अगर नदी की अपनी कोई वेलोसिटी ना होती, नदी रुकी हुई होती, जैसे यहां पर तो गिवन है कि रिवर फ्लोज विद कांस्टेंट सॉरी दिस इज द बोट, yes, a boat which is rowed with constant velocity u, ओके, सो u वेलोसिटी यहाँ पर मुझे u मेंशन करना चाहिए, u वेलोसिटी बोट की है और रिवर की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है दैट इज v, सो v इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर यहाँ v 0 होता, राइट, अगर यहाँ v 0 होता तो क्या होता? यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, ठीक, आपने सही सोच लिया होगा मुझे उम्मीद है। अगर यहाँ v 0 होता तो अगर वो बोट A पर है और उसको वेलोसिटी दी जा रही है B के अलोंग, तो वो सीधे
इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए बी पर पहुंच जाती, ठीक। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर बोट को खुद जो वेलोसिटी दी गई है वो u है, लेकिन एक और कंपोनेंट उसके ऊपर एक्ट करेगा और वो कंपोनेंट होगा या वो वेलोसिटी होगी v। और बोट किस डायरेक्शन में जाएगी, बोट जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है उस डायरेक्शन में ना जाकर के बोट इन दोनों के रिजल्टेंट के अलॉन्ग जाएगी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बोट जब मूव करेगी तो वो एग्जैक्टली हमेशा जाने जो u वेलोसिटी है वो तो हमेशा v की तरफ रहेगी, लेकिन फिर यहां पर भी जैसे बोट पहुंच गई, सपोज बोट यहां पहुंच गई, राइट, और यहां पर भी उसकी वेलोसिटी u आप इधर चाहते थे उसको ले जाना, लेकिन v आपको साथ में फेस करना पड़ रहा है, तो फिर थोड़ा सा ये उस तरफ झुक जाएगा मोशन का डायरेक्शन। तो हमेशा ये एक कर्व्ड पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ भी नहीं होगा, एक कर्व्ड पाथ होगा। और वो जो कर्व्ड पाथ होगा हमें उस पाथ की बात करनी है, साथ ही साथ में हमें और भी यहाँ सोचना होगा कि हम फोकस कहाँ लेंगे, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करेंगे, फोकस कहाँ लेंगे। तो उसके लिए हिंट आपकी क्वेश्चन में ही छुपी हुई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द बोट। And again, it is written if v equals u, show that the path is a parabola with focus b। तो देखिए फोकस उन्होंने b दे दिया, और जो कॉनिक सेक्शंस आप l अपॉन r इक्वल्स 1 प्लस e cos थीटा लेते हैं, तो वहां पर आपने पढ़ा है कि जो पोल होता है, पोल ही फोकस होता है, राइट। तो इसका मतलब आपको जब फोकस बता दिया गया कि फोकस b है, मतलब आपका पोल आपको मिल गया, पोल इस केस में b होगा। क्लियर हो गया। और इनिशियल लाइन तो मैंने सपोज इस डायरेक्शन को मैंने इनिशियल लाइन ले लिया है, और ये हो गया मेरा यहाँ पे इस केस में, इस क्वेश्चन में पोल, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, सपोज करेंगे कि एट टाइम t, सपोज एट टाइम t the boat is at a point p whose polar coordinates are r, theta, और इस लोकेशन पे उसकी जो वेलोसिटी है फिर से वही, एक कंपोनेंट तो v होगा और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो b के अलॉन्ग होगा, और वो कंपोनेंट क्या होगा, वो कंपोनेंट u होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर अगर रेडियल और ट्रांसवर्स, यहाँ मैं इसको कंप्लीट कर दूं, एट टाइम t द बोट इज एट p, जिसके की कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो r और थीटा हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर r डॉट यानी dr बाई dt रेडियल वेलोसिटी बोट की, और r d थीटा बाई dt यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस लिखेंगे, तभी आप आगे से सॉल्व करके पाथ की इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो dr बाई dt क्या लेंगे, ठीक। फिर से यहां पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके सोचिए, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि अगर आप dr बाई dt या r d थीटा बाई dt के एक्सप्रेशंस लिखना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर dr बाई dt किस सेंस में होगा, r इंक्रीजिंग, r d थीटा बाई dt किस सेंस में होगा, थीटा इंक्रीजिंग। और साथ ही साथ में आपको जो u और v कंपोनेंट्स गिवन हैं, इन u और v कंपोनेंट्स को ब्रेक करना होगा, राइट। तो दिस इज u एंड दिस इज v, और पोल कहां है, पोल यहां पर है, b इज पोल एंड दिस इज योर इनिशियल लाइन। तो रेडियस वेक्टर क्या हुआ, और पॉइंट यहां पर है आपका p। व्हाट इज रेडियस वेक्टर, रेडियस जब पोल b है तो आपका जो रेडियस वेक्टर है वो हो गया bp, राइट। और r क्या है, r हो गया, इसकी जो लेंथ है वो r है bp की। और आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में u लिया गया है उस डायरेक्शन में r इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर देखिए u इज along r डिक्रीजिंग, u r के घटने के डायरेक्शन में है। तो हम लोग इसका मतलब यहाँ पर जो dr बाई dt है, पहली चीज तो जो dr बाई dt हम लोग लिखेंगे वो हमारा, जो हम लोग dr बाई dt लेंगे वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ dr बाई dt। क्लियर। और हमारा u जो है वो इस तरफ है,
तो हमारा dr/dt जो होगा उसमें u का कंट्रीब्यूशन माइनस u होगा। क्लियर हो गया। साथ ही साथ में अगर v की बात करें तो v के लिए क्या करते हैं, यहां पर थीटा क्या है, थीटा इनिशियल लाइन एंगल है, सो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, और सो दिस इज थीटा। अब अगर v को डिकम्पोज कर लें तो v का एक कंपोनेंट आ रहा है v cos थीटा, राइट, और दूसरा कंपोनेंट ये जाएगा इधर v sin थीटा, और इस तरफ क्या आएगा v cos थीटा। तो क्या होगा, dr/dt क्या लेंगे, तो dr/dt जो है हमारा वो तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, r के बढ़ने की दिशा में। तो r के बढ़ने के डायरेक्शन में क्या आ रहा है, v cos थीटा पॉजिटिव सेंस में है और u निगेटिव सेंस में है, तो क्या लिखेंगे v cos थीटा माइनस u, राइट। और r d थीटा बाई dt, यस, r d थीटा बाई dt किस डायरेक्शन में होगा, थीटा के बढ़ने के डायरेक्शन में। थीटा किधर बढ़ रहा है, थीटा इस तरफ बढ़ रहा है, तो जबकि v sin थीटा किधर है, v sin थीटा उस तरफ है और थीटा इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए r d थीटा बाई dt और v sin थीटा में माइनस एक निगेटिव साइन लेना होगा हमको यहाँ पर, सो इट विल बी निगेटिव v sin थीटा। कुछ भी रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपकी बाकी प्रॉब्लम्स जो आप खुद ट्राई करेंगे तभी लग पाएंगे, ठीक। अब अगर हम इनको डिवाइड कर लें और डिवाइड करने के बाद में हम इन्हें सॉल्व कर लें, तो आप लोगों को सॉल्व करने के बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मिलेगा r sin थीटा इक्वल्स c tan थीटा बाई 2। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करेंगे, सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, u डिवाइडेड बाय v, ठीक। सो दिस यू विल गेट दिस एज पाथ, राइट। अब आपको एक और चीज प्रूव करनी थी कि अगर v और u इक्वल हो जाएं तो आपको ये शो करना था कि पाथ पैराबोला होगा जिसका फोकस भी, तो फोकस भी होने के लिए तुम लोगों ने ऑलरेडी पोल को ले रखा है v पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस स्पेशल केस में आप क्या करेंगे, आप u इक्वल टू v करेंगे, और u इक्वल टू v कर लेने के बाद में आप इसे सिंप्लीफाई जब करेंगे, tan थीटा बाई 2 है, tan थीटा बाई 2 की जगह पे आप लिखेंगे sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, और इसी तरह से यहाँ पर sin थीटा आ जाएगा तो 2 sin थीटा बाई 2, यस sin 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे, और u इक्वल टू v करेंगे तो ये जो पावर u अपॉन v 1 हो जाएगी, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा c अपॉन r इक्वल्स 1 प्लस cos थीटा। ये आप सिंप्लीफाई करिएगा, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ये हो गया L अपॉन R इक्वल्स अगेन 1 प्लस e cos थीटा। यहाँ पर e कितना है, e यहाँ पर 1 है। इफ e is 1, eccentricity is 1, then obviously the path is going to be parabola. क्लियर। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रॉब्लम्स अभी आपको बताई, अच्छी प्रॉब्लम्स थी, काफी अच्छी प्रॉब्लम्स थी, जो आप लोगों को काफी कुछ आगे के लिए आप लोग इससे समझ पाएंगे। अब आप लोग इस चैप्टर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ट्राई करना शुरू कर दीजिए तुरंत, और नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं, अगर आपकी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो फिर मैं अगले चैप्टर की तरफ भी मूव कर सकता हूँ, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स मैं ले लूंगा जो कि एस और साई में, यानी कि जहां पर टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे। थैंक यू।